ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कल पावन हरिनाम संकीर्तन की एक बार और बोलेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र भी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, तो टुडे इट्स अ question answer session. Whatever question you may have, you can ask. Okay, it's free to ask the question. So first two things I will let you know. दो चीज़ें बताएंगे। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा टेम्पल का, सुना है ना? टेम्पल सुना है ना? टेम्पल का स्पेलिंग क्या है? TEMPLE, टेम्पल। Do you know this? What is the meaning of this temple? This temple क्यों particularly temple ही बोला गया इसको? और कुछ भी तो वर्ड्स हो सकता था। Is there any meaning of the temple? स्ट्रक्चर तो कोई भी बना सकता है बाहर में, उसका भी तो रीठ पत्थर से बनना है स्ट्रक्चर, तो क्या है? नो आइडिया एक्चुअली। नो आइडिया? नहीं। क्यों मंदिर बोला उसको? Meaning, there is a meaning in a Vedic scripture. There is nothing like you have to accept. Where God lives, I think the place where God lives. So why temple only? Why not others? Is there any meaning of this particular temple? There are two words in Mandir, Man and Adir. Man plus dhir, not adhir. Dhir. Mandhir. That is also there. And temple means, तो टेम्पल एक जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है. इट इज गिविंग सम मैसेज इन आवर वैदिक लिटरेचर. इज इट ओके टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? या ओके। हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है या कैसे? दोनों ठीक है. सो टेम्पल इज हैविंग सम पर्टिकुलर मीनिंग लाइक अ शॉर्ट फॉर्म. TEMPLE. इट इज शॉर्ट फॉर्म लाइक इस्कॉन. इस्कॉन क्या एक शॉर्ट फॉर्म है ना? किसका? इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस. लाइक टेम्पल आल्सो द शॉर्ट फॉर्म. इट इज नॉट फुल फॉर्म. एवरी वर्ड इज हैविंग इट्स ओन मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पल? लेट अस अंडरस्टैंड. T stands for tranquility. Tranquility means what? Peacefulness of the mind. Tranquility means peacefulness of the mind. Everyone wants their mind to be peaceful. So whenever somebody comes in a temple, just do some pranam and offering some prayers, he feels, oh, my mind become very peaceful. It's a reality. असमीज में तो ऐसे बोलते ना, अजीम मंदिरों आपके साथ खूब भल लगेल, मन तो एकदम पटल हो गई से, है ना? इन्हें कोई ना नहीं ऐसे बोलते हैं. So why this particular temple is very meaningful? So temple provides, first thing, temple is, it's why this particular name is given because the temple is the source of social activities. The topmost social activities beneficial for the humankind. The other
resources cannot provide that. The temple provides it free of cost. That's why first thing it provides is T means tranquility. See, it's very important. Many people, many rich millionaires, billionaires, they don't have peace of the mind. So temple provides it free of cost. Recently, one of some YouTuber or someone who tried to commit the suicide. His speed was 120. Live he was showing. Because his girlfriend left him, his family members accused and him. left him. So UK07. His name is UK07. UK Right. something like that. Just I heard on पूरा डीप में जाने का हमको नहीं है, बस पता लगा हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है. So he is live showing I'm going to commit the suicide. He attempt to commit the suicide. Why? He is having millions of monies. Money is there. Yeah. Millions of rupees are there. What is the use? But people consider money is everything. पैसा ही सब कुछ. ऐसा ही सोचते हैं ना, नहीं सोचते हैं. लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं. The highest thing is something else. What? That is the temple is providing that. So T stands for Tranquility. second. T after T, E. E. E means it educates people. It Educate. provides education. Education. What kind of education? Spiritual. The most important education is how to be happy always, not one day, 2 day, or sometime or any time. Every time you have to be happy. How you can be happy all the times? By what a kind of education it is giving? First find out who you are, what is your identity. After coming to know your identity, then only you can find the particular source of happiness for that. Like fish. What is the identity of fish? Where it is its identity? The identity of fish in water. So if you take it out from the water, can it be happy? So she have to find out what is its identity, where she can be happy. तो पहला चीज तो हो गया क्या? T for tranquility. ट्रैंक्विलिटी, पीस ऑफ द माइंड. Peace of mind. सेकेंड चीज हो गया Education. Education. एजुकेशन. क्या तरह का एजुकेशन? मैं कौन हूँ, हाँ. मेरा आइडेंटिटी क्या है Identity. ना. सेकेंड, भगवान कौन है, वो मेरा सोर्स ऑफ आइडेंटिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड गॉड. वी आर पार्ट एंड पार्सल. देन माई क्या रिलेशन है उनके साथ में मेरा, दैट आल्सो एक्सप्लेन. एंड थर्ड इज हाउ आई कैन डेवलप दैट रिलेशनशिप. वो रिलेशन संबंध को कैसे स्थापित करूँ. 4 तरह के क्वेश्चंस भगवत गीता में इन द यू विल फाइंड आउट. दैट्स व्हाई भगवत गीता को कहा जाता है मैनुअल फॉर द ह्यूमन काइंड. मनुष्य जीवन का क्या है वो मैनुअल है. तो टेम्पल गिव्स एजुकेशन अबाउट सेल्फ, your identity, source of identity, how you can be happy. So why that person having so much money is not happy? Because he don't know what is his identity, how he can be happy. So इसीलिए पैसे के पीछे नहीं भागना है जीवन में. आजकल दुनिया सोसाइटी उल्टा हो गया, पैसे के पीछे भाग रहा है. पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट क्या होना जरूरी है? एजुकेशन होना पड़ेगा. Third, T means M. sorry, TEM. M means M is temple क्या करता है? Medication. M means not meditation. Medication. Medication means therapy. medication. Healing. Treatment. Treatment. हाँ. Medication means Treatment. healing और treatment. क्या treatment करता है? Mentally. Suffering in life. Whatever kind of contamination is there, it takes it away. It takes it out. जितना भी आप में गंदगी भरा हुआ है ना, सब गंदगी को टेम्पल क्या करता है? बाहर निकाल देता है. सबसे बड़ा गंदगी क्या है? माइंड में भरा है, क्योंकि यहीं से तो सारा कंट्रोल हो रहा है बॉडी का. हाँ. तो टेम्पल उस चीज को ही हाईलाइट करता है, कैसे इस गंदगी को आप बाहर निकाल सकते. नेक्स्ट P.
और सॉरी वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन, कैसे मेडिकेशन होता है? बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा प्रोसेस। आप शरीर को गंदगी है तो काट के पीट के ऐसे करके निकाल सकते हैं, अंदर का गंदगी कैसे निकालेंगे? तो देर आर इनर प्रोसेस लाइक साउंड मेडिटेशन, चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड्स फॉर्म, ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस हैं। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, associating with the devotees, having darshan of the Lord, there are different processes. So temple provides that. Next, P. P. When medication happens, what happens? गंदगी सारा निकल गया तो अभी क्या होगा? Purification. Purification. It purifies us by medicating us. ना तो next क्या हो गया? Purification. Purification of the body, purification of the thoughts, purification of mind and intelligence and ego. You will be introduced to the real ego. And purification of the soul. Soul is a transcendent, it's purified, but covering is there. It can remove the covering. There are 3 types of bodies. How many bodies we have? 3 types. अभी तक हमने कितना सुना है? एक ही बॉडी सुना है, हम तो यही शरीर है। हाँ। 3 शरीर कहाँ से आ गए? हमारे 3 शरीर एक बार में रहते हैं, साथ में रहते हैं। कौन कौन से 3 शरीर है? Soul, I think. Soul, सोल 1, physical, फिजिकल 2, व्हाट इज अदर? Psychology, thinking, mind. spiritual. स्पिरिचुअल सोल इज स्पिरिचुअल yeah. ओनली, नो आइडिया? सो लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज सॉरी, We are parts and parcel of God. so I am talking about the body. 3 bodies we have. First is Soul. soul. Soul is the main person. Okay. उसके ऊपर सोल क्योंकि डायरेक्टली मैटर के कनेक्ट में नहीं आता है, तो इसके ऊपर में एक सटल कवरिंग रहती है, वो होता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन इससे सबसे पहले कवर होता है इससे. हाँ. फिर उसके बाद में जैसा इम्प्रेशंस माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो के ऊपर में रहता है, सटल बॉडी के ऊपर में रहता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर में जैसा इम्प्रेशंस रहता है, इट एक्सेप्ट्स दैट काइंड ऑफ बॉडी. जैसे किसी का सटल बॉडी में इम्प्रेशन है, उसको बहुत सोना है, सोने का इम्प्रेशन, ही विल गेट नेक्स्ट बॉडी एज पोलर बियर. कितना सोता है वो? 6 मंथ, 6 months. हाँ. है ना, 6 मंथ, कैन सी हाँ. लाइक दैट. किसी का है मेरे को फ्रेश ब्लड खाना है, किसी का he will get the body of Lion. Tiger. lion, tiger, many Kind those who eat Dracula. that kind of body he'll get. And if somebody wants I want to be in water also, I want to be in land also, so he'll get that kind of Crocodile. crocodile, you know. So many different, whatever kind of thought is there, you'll get different bodies. So intelligent person will think, if I am getting body according to this, so what I should do, so I will not get the material body at all. I should get some different kind of body. There I should not be taking another birth again. So that is possible in the spiritual body. So long you will be having the material body, जब तक आपका ये भौतिक शरीर रहेगा तब तक इसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज़ें चलती ही रहेगी. मनुष्य की असली प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रहना, खाना, सोना, वो प्रॉब्लम नहीं है. असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है यही, जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा आना, बीमारी होना. कि जब तक भौतिक शरीर रहेगा ये 4 प्रॉब्लम हर किसी को है. कोई सा भी शरीर धारण करो, तो आपका जो सटल माइंड में क्या आपके कॉन्शियसनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट शरीर मिलेगा. तो टेम्पल प्यूरिफाइड्स योर सटल बॉडी by giving the spiritual instructions, spiritual education. It enhance your consciousness. आपकी चेतना को क्या करता है टेम्पल? बढ़ा देता है. There is one nice story. सुअर का आनंद, आपने सुना है इसका स्टोरी? सुना नहीं? सुना? सुअर का आनंद. सुअर जानते हैं ना सभी? हाँ. Pig. Yeah.
सुअर का आनंद। सुअर का आनंद क्या है? एक बार एक आदमी था, एक स्टोरी। एक बार एक आदमी था, वो एक सुअर को देखता है, वो हमेशा गंदगी में रहता है। उसको लगता था यार सुअर भी तो एक जीव है, इसका भी थोड़ा सहायता करना चाहिए क्या, इसको क्यों गंदगी में रखना चाहिए, बेचारे को कोई शेल्टर नहीं है इसलिए कीचड़ में रहता है। मैं इसको क्या करता हूँ, वो थोड़ा इसको अच्छी केयर करता हूँ। तो वो क्या करता है, हाई प्रेशर जेट लाता है, उसको पूरा अच्छे से सफाई करता है, नहलाता है उसको, अच्छा सेंट लगाता है उसको, है ना, अच्छा उसका ड्रेस सिलवाता है नया, ऐसी रूम देता है, अपना पर्सनल रूम देता है, यहाँ पे रहो तुम। सुअर सोच रहा है मैं कहाँ आ गया इधर में, यहाँ तो कोई कीचड़ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई लेटरिन भी पास नहीं कर रहा है, मेरा खाना क्या होगा। वो कह रहा है नहीं इसको लेटरिन नहीं खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, अच्छा प्योर घी में बना हुआ हलवा खिलाएंगे इसको। सुअर कह रहे ए क्या बदबू आ रही है इसमें, ये सब नहीं खाता हूँ, है ना। तो सुअर भी क्या कर रहा है, वो कुछ भी खिला रहा है वो नहीं खा रहा है ना, कि उसको लग रहा है कहाँ जेल जैसा हो गया मेरे लिए, इतना अच्छा था, मैं गटर में पड़ा हुआ रहता था, कितना आनंद था उधर में। तो वैसे सोच में बहुत बीमार हो गया है उसके बाद। तो आदमी सोच रहा है यार इसको तो मैंने अच्छा ही किया था, ये शायद खुला में रहना चाहता है। हाँ। तो उसने क्या करा, उसको थोड़ा खुला में घुमाने के लिए लेके गया। वो जैसे ही लेके गया, सामने दिखा एक गटर, वो तुरंत जाके दौड़ के गटर में कूद गया और उसको बोला हाँ आज जाके श्वास आया है मेरे को अच्छे। तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसको स्टोरी को ऐसे बोला सुअर का आनंद। सुअर का आनंद किस में है, गटर में। गटर में, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना गटर की चेतना। हाँ। तो जब तक उसकी चेतना नहीं आगे बढ़ेगी, अपलिफ्ट नहीं होगी, तब तक उसका आनंद कौन सा आनंद रहेगा, सुअर का आनंद जो है वो गटर में ही रहेगा। तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी लोग होते हैं, भगवान का मंदिर में दर्शन करने तो खाली आ गया, हाथ जोड़ा चला गया, जाके सेल्फी खींचेगा, ये करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, ये करेगा, उसका आनंद उसी में ही है, उसका आनंद भगवान के आनंद में। लेकिन भक्त का आनंद क्या होता है, मंदिर में आ गया, वाह सो नाइस इट इज, ही डोंट वांट टू गो आउट, भगवान के दर्शन करेगा, ये करेगा, डांस करेगा, कीर्तन करेगा, सुबह से शाम हो गया मंदिर से जा ही नहीं रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति वो क्या करे, हाँ आ गया, बस फॉर्मेलिटी पूरा करके। बहुत लोग होते हैं रेगुलरली हम देखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी आ सकता है उस लेवल पे, कैसे, अपलिफ्टिंग हिज कॉन्शियसनेस। सो टेम्पल अपलिफ्ट्स द कॉन्शियस बाय प्यूरिफिकेशन। So different processes are there for the purification. In that way, we can uplift our consciousness. Understood? P for purification. Then next is L. L. When purification happens, you develop love for the Supreme Lord, for the eternal personality. Okay. That love doesn't mean lust. We wrongly use the word love. Yeah. भौतिक जगत में लव को कैसे यूज करते हैं, काम वासना को बोल के। जैसे एक लड़का लड़की को बोलता है फॉल इन लव, लव में कोई गिरता नहीं है, काम में गिरता है। लस्ट फॉल्स, इन लस्ट समवन फॉल्स, बट इन लव इट इनहेंस, इट अपलिफ्ट्स। सो व्हेन वी डेवलप लव फॉर द लॉर्ड, आवर कॉन्शियसनेस विल अपलिफ्ट. That is the eternal love. When we develop such kind of love, then we will come out of the cycle of birth, death, old age and disease. Understood? So this is the love. After what? E. E. E stands for engagements. Okay. Because unless you have engagements, you cannot develop the transcendental love. So temple provides engagements. Engagement means सेवा, किसी भी तरह से सेवा करें हम मंदिर में, जैसे प्रसाद वितरण हो गया, लोगों को मंत्रा कार्ड देना हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो गया, उनको जप करना कैसे करना है वो सिखाना हो गया, अलग अलग तरीके की ये सारी चीज़ें। ये सब किस में आता है, Engagement. टेम्पल में झाड़ू पोछा करना इज अ ग्रेट सर्विस। जितना हम झाड़ू पोछा करेंगे मंदिर में, उतना ही ज़्यादा हमारा फास्ट प्यूरिफिकेशन है।
टेम्पल में आने से हमको कभी खाली बैठना नहीं चाहिए, तुरंत क्या सेवा कर सकता हूँ मैं देखना चाहिए। टेम्पल प्रोवाइड्स engagement. engagement. So what kind of social service temple is giving? लोग सोचते हैं इतने बड़े बड़े मंदिर बना के क्या, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल खोलो, ये खोलो। हॉस्पिटल में आप बॉडी का ट्रीटमेंट करेंगे, माइंड का ट्रीटमेंट कौन करेगा? हार्ट का प्यूरिफिकेशन का हार्ट का ट्रीटमेंट कौन करेगा? हार्डवेयर यू कैन प्रिपेयर, बट व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड, है ना? तो सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? टेम्पल। Temple. कितने टेम्पल्स होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए? ज़्यादा। ज़्यादा होना चाहिए। आज देखेंगे बॉडी का परेशानी कम है, माइंड का परेशानी ज़्यादा। ज़्यादा है। सोचो, समझ में? तो दिस इज द टेम्पल। तो हिंदी मीनिंग इज ऑल्सो वेरी मीनिंगफुल, धीरा, जस्ट लाइक ही हैज टोल्ड। मन प्लस धीर। धीर। मन को धीर बनाने वाले को बोलते हैं मंदिर। मंदिर। धीर मीन्स शांत। शांत, टॉलरेंट, पीसफुल, मीन्स ही कैन बी even though there is a situation of provocation, but he will not, he will be very much peaceful, he will not be reacting to the situation. That is the meaning of धीरा। समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी ने सामने से गाली दे दिया, कुछ सुन के ही हमको गुस्सा आ जाता है, तुम मार दूंगा तेरे को एक दो, लेकिन वो आदमी क्या है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इतना बोल दिया तो, है ना? ऐसा सुनते हैं ना, नहीं सुनते? समझ में? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मंदिर। मंदिर हमको धीर कैसे बनाता है? बाय इंगेजिंग अस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई हमारे जो मंदिर है, हरे कृष्णा मंदिर है, हरे कृष्णा मंदिर से कितनी सारी सेवाएं होती हैं। यहाँ में मंदिर में आके लोग प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, उनका डिफरेंट लेवल से अपलिफ्टमेंट कैसे होता है, उसके लिए हम लोग का आश्रय सेरेमनी होता है। आश्रय सेरेमनी में क्या होता है, वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उनको फर्दर प्रोग्रेस होता है ना? यूथ एक्टिविटीज़ होता है, कॉलेज में जाके हम लोग यंगस्टर्स को राइट गाइडेंस देते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे करके। यहाँ हमें भी बुलाते हैं, जैसे आप लोग आए, है ना? आज थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से बच्चे लोग कम आए, नहीं तो हर दिन बच्चे लोग आते हैं, हर संडे को पूरा हॉल फुल रहता है। हम अलग अलग जगह में जाके भी ऐसे सेशंस कंडक्ट करते हैं, कॉलेज स्कूल्स के अलावा भी अलग अलग सेंटर्स में, है ना? उसके अलावा यहाँ हमें स्कूल है ICV के, इंडियन कल्चरल एंड वैल्यूज़ फॉर किड्स, जिसमें CBSE एजुकेशन दिया जाता है, उसके साथ में बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है कैसे जीवन को जीना है। एक हमारा फ्री स्कूल चलता है, ग्रेट इंडिया टैलेंट स्कूल त्रिपुरा में, वहाँ पे 8th क्लास तक पढ़ाई होता है, उसके बाद में यहाँ में आके वो लोग हायर पढ़ाई करते हैं, वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। प्रभु यहाँ पे संस्कृत सिखाते हैं क्या? संस्कृत, आजकल संस्कृत का बच्चे लोगों को ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं है, तो संस्कृत उतना ही सिखाते जितना वो किताब वगैरह पढ़ने के लिए सफिशेंट है। बाकी उनको CBSE एजुकेशन होता है, ऐसा पर्टिकुलरली ये नहीं। लैंग्वेज का पर्पज़ क्या है? अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, isn't it? So we teach why particularly Sanskrit? No, we teach the language whatever you can understand. In that way you should progress. That is the for our motto. So apart from this, there are the education regarding free food distribution for the children's. Akshay Patra. 60,000 students are getting meals every day. आसाम के अलग अलग पार्ट्स में हम लोग के डिफरेंट सेंटर्स आ रहे, जैसे अभी जोरहाट में आ गया, माजुली इज गोइंग टू कम, तेजपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, नलबाड़ी, सिलचर, ऐसे अलग अलग लोकेशंस में आने वाला है फ्यूचर में। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़, इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ? टेम्पल्स। सी हाउ इम्पोर्टेंट टेम्पल इज। देन यहाँ में हम लोग का और भी एक किचन है, जिसमें से हॉस्पिटल्स, अनाथालय, ओल्ड एज होम, ऑर्फेन्स, सबको फ्री खाना जाता है। कितना एक्टिविटीज़ होता है इस छोटे से कैंपस में,
लोगों को जलन होती है, इन लोग को इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे थी, इस ये नहीं, हमको इससे भी बड़ा चाहिए, ये हमारे लिए कम हो रहा है ना। इनको कार क्यों चाहिए, कार क्या, हमको बड़ी बड़ी चीज़ें यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फास्ट स्पीड में जाना पड़ेगा ना, तभी तो इतना सारा लोग कल्टीवेट हो पाएगा, वो लोग समझ पाएगा। अगर मान लो चोर जा रहा है किससे, कार से, आप साइकिल लेके दौड़ेंगे उसके पास तो चोर को पकड़ पाएंगे? इम्पॉसिबल। यू हैव टू रन मोर स्पीड देन थिफ। चोर से भी ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा ना, इसलिए हमको और फास्ट और फैसिलिटी चाहिए ताकि, और ये काम किसका है, सोसाइटी का। सोसाइटी शुड गिव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर अस so that we can give more engagement to the others, more facilities for them. So इस तरह से the temple is I explained. So now you can ask the questions. Understood the meaning of the temple? Yeah. So how important temple is ना? Yes. किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। प्रश्न है पूछो। Feel free to ask, not an issue. गुरु जी, जैसा आपने बताया कि आपने जो जो ये यहाँ पे बताया ज्ञान की बातें, बाहर में किसी को नहीं पता है, तो हाउ दे नो, हु एक्सप्लेन देम? मतलब आपने तो हमें बताया, हमें पता चला, आपने बोला ना कि उनको पता नहीं होता है, तो उनको कौन समझाएगा बाहर के लोग? इस पर्पज से तो हम लोग इतने सारे इनिशिएटिव्स रखते हैं ना, यूथ प्रीचिंग, हम लोग जाते हैं जहाँ पे वो है, वो तो नहीं आ रहे हैं इधर में, तो हम चले जाएंगे उनके कॉलेज में, ओके, उनके एरियाज में, वहाँ जाके एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। जस्ट लाइक नगर संकीर्तन, अनदर एक्टिविटी वी हैव डन, वी आर डूइंग रेगुलरली एवरी संडे। हर गांव में जाके नगर कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन के बाद में उसी गांव में एक जगह बैठ के कथा करते हैं, समझाते हैं उनको, ऐसा उद्देश्य है जीवन का। सो कहाँ तक भागेंगे उनके पास ही चले जाएंगे ना, है कि नहीं? छोड़ेंगे नहीं उनको, सब कॉलेज में चले जाएंगे। कितना कर सकते हैं? फॉर दैट वी रिक्वायर मोर वॉलंटियर्स, सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड अस वॉलंटियर्स, और समवन शुड कम फॉरवर्ड। लोग सोचते हैं, जैसे बहुत पेरेंट्स देखते हैं कि उनका बच्चा इस एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, वो सोचते हैं मेरे बच्चा को ऐसा होने देंगे क्या? अरे इससे बड़ा सर्विस क्या है? जस्ट लाइक वी रिक्वायर्ड आर्मी पर्सन फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, वी रिक्वायर डॉक्टर to treatment, we require engineers for different kinds of facilities, construction and all. So don't we require brahmanas to give us knowledge? Isn't it a great service? Why we hesitate for that? ब्राह्मणों की जरूरत है कि नहीं, जो हमको ये ज्ञान दे? ब्रह्मचारी की जरूरत है कि नहीं, that can dedicatedly preach, explain this science. Brahmanas are the head of the society. अगर मान लो किसी का सर ही धड़ से अलग कर देंगे तो कुछ कर पाएगा क्या वो? तो आज सोसाइटी जो है वो हेडलेस सोसाइटी हो गया, क्योंकि ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं होता है कोई। जन्मना जायते शूद्र, शास्त्र में बताया गया, जन्म से हर कोई क्या है? शूद्र। शूद्र मीन्स इग्नोरेंट पर्सन, है ना? तो संस्कार भवेत द्विजा मीन्स बाय डिफरेंट understanding different samskaras you can become a brahman. So when I was doing my BTech, that time I come in touch, शुरू से बचपन में घर में देखा था, हाँ मंदिर, घर के सामने ही मंदिर था, जाते थे आरती वगैरह अटेंड करते थे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था। when we come in touch with Srila Prabhupada, Srila Prabhupada is not an ordinary person, पूरे वर्ल्ड में एक तूफान लाने वाले पर्सनालिटी है, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया विद इन 10 years. इज अ प्योर डिवोटी. सो व्हाई पर्टिकुलरली हरे कृष्णा मंदिर इज हैविंग दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव? आपके गांव में भी तो बहुत सारे मंदिर है, क्या वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं? दिस डिपेंड्स ऑन द गाइडेंस, डिपेंड्स ऑन द आचार्य. Prabhupada has taught us in this way, giving the education in this way. ये प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा है. तो now the youngsters, those who are having this kind of inclination, they want to do some service to the society, they should come forward, get the training and teach others. आप खुद एजुकेशन लीजिए और इसको सिखाइए लोगों को.
It's youngsters' duty. They should come forward, isn't it? Yes. तो प्रभुपादा मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अभी जो ये मंदिर में भी वीआईपी कल्चर जो शुरू हो गया है, जहाँ पे पैसे देते हैं और वो पहले दर्शन करते हैं, और जो नॉर्मल है वो मतलब लाइक पीछे रह जाते हैं। तो अगर भगवान सबके लिए है तो पैसे वाले उसको पहले क्यों देख पा रहे हैं? ओह वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द टेम्पल इज मेंट फॉर सेवा। टेम्पल किसके लिए बना है? सेवा। Someone can serve in different way, someone can serve in different way. There are 4 ways of serving. Prane, Artha, Dhiya, Vacha. Prana means physical service, physically involving in the service. If somebody is not having that kind of capacity physically or fully he can involve, then second option is Artha, giving money for the service of the temple. Third, if somebody is not having money, then whatever talent you have, you serve the temple or Lord. Third, somebody is saying मेरे पास तो टाइम भी नहीं है देने के लिए, नहीं मेरे पास पैसा है, नहीं मेरे पास टैलेंट है, वो अच्छा प्रोनाउंस अबाउट द नाम जप करिए, you chant name of the Lord, glorify the Lord in front of others. These are the 4 services. So this is not a VIP culture, it's a foolish understanding actually. This is the service given by different personality. जो सबसे अच्छा सर्विस भगवान को है वो क्या है? फुली सरेंडर। तो जब कोई लोग लाइन में लग रहे हैं, ही इज गिविंग फुली टाइम टू द लॉर्ड, सो लॉर्ड लाइक दैट फर्स्ट। बट समबडी, कोई बिजनेसमैन है, ये है, उसके पास में वो टाइम नहीं है देने के लिए, और अगर आप उसको बोलेंगे उसी लाइन में लगो तो वो दर्शन करने भी नहीं आएगी। सो फॉर देम लॉर्ड इज गिविंग सेकेंड ऑप्शन, you give money for the service of the Lord and you take darshan and go because you don't have time. So why? अगर आप उसको जिस पैसा तो है उसके पास, अभी वो पैसे का क्या करेगा? अगर वो भगवान की सेवा में नहीं देगा तो किस में देगा? ड्रिंकिंग एल्कोहल, मिस यूटिलाइज द मनी. So temple creates facility for accommodate. It is accommodating them for what? So they can be engaged in the service of the Lord. Understood? There are some person they don't want to give their time. भीड़ होगी, ये होगी तो वो जाएंगे नहीं, तो उनके लिए एक स्लॉट क्रिएट किया, एटलीस्ट तुम भी सेवा करो, वो भी सेवा है। क्या सेवा है वो? सेकंड लेवल का सेवा। फर्स्ट सेवा क्या है? फिजिकल सर्विस, जिस तरह प्राण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। But whoever is visiting the temple, their idea is to like we'll go there and we'll take photo and we'll upload on social media. Whatever it is, but they are giving money for the service of the Lord. That money purifies them, because money is also coming with not कोई फ्री में तो पैसा नहीं आ रहा ना, वो भी तो हार्ड लेबर तो करके ही आ ही रहा है ना पैसा। तो वो लोग एंगेज नहीं हो रहे, इंगेज हो रहे हैं ना बाय गिविंग देयर मनी। मनी इज ऑल्सो वन इंगेजमेंट। भाई मनी से आप फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं ना और चीज़ों के लिए, जैसा भी किसी ने कंस्ट्रक्शन के लिए मनी दिया है ना। अभी बाकी अगर आप 10 रुपये चंदा उठाते तो नहीं मिलता ना, तो कोई देता कोई नहीं देता। इट इज़ मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट इफ समबडी इज डोनेटिंग 5 लाख 10 लाख रुपीज, फटाफट मंदिर बन गया। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द सोसाइटी ओनली। सो इन दैट वे देयर एंगेजमेंट इज डन। दैट इज ऑल्सो, आपको 10 लाख रुपए कमाने में कितना मेहनत करना है? एक मजदूर को 10 लाख करने में कितना मेहनत लगेगा ना। समबडी बिजनेसमैन कैम एंड गिव। तो प्रभु जी, अगर कोई गलत काम करके अगर पैसा कमाया और वही दान करे तो उसमें भी से गलत काम करके वो एंजॉय तो करेगा ही ना, करेगा ना, नहीं करेगा? हाँ, एंजॉय करेगा। दैट मीन्स इट्स मोर डिग्रेडिंग हिम। तो अगर वो गलत काम करके भी वो पैसा दे रहा है, फर्स्ट ही शुड नॉट बी डूइंग, बट अगर मान लो गलत काम करके भी वो पैसा दे रहा है तो भगवान उसको थोड़ा सा सद्बुद्धि देंगे कि वो गलत काम करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। That's why temple gives opportunity for them also, so that they can be purified in that. Understand? So ये VIP कल्चर नहीं है। क्या है ये? It's facility. क्योंकि वो अगर डोनेट करेंगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अदर्स, एवरीवन। ऐसा तो है नहीं उन्होंने कोई फैसिलिटी दिया, पैसा दिया तो खाली वही आके उसमें आनंद ले रहे। इतने लोगों ने मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया, तो क्या वही आके बैठ रहे हैं क्या मंदिर में? It's a facility for everyone.
isn't it? तो पर प्रभु जी मतलब जो जैसा यहाँ पे होता है ना कि सारे सब साथ में मिलके आप सिखाते हो कुछ और हम सीखते हैं, वैसा हर मंदिर में नहीं होता। हर मंदिर में डिपेंड्स ऑन टेम्पल्स मैनेजमेंट। स्पेशली हम लोग क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के गाइडेंस में हैं, तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये है। और प्रभुपाद जी एक परंपरा में आते हैं। 4 तरह के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में प्रभुपाद जी ब्रह्म जो संप्रदाय है उसी में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, तो इसी में 32वें नंबर के आचार्य आते हैं। इसीलिए इस संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। प्रभुपाद जी का मिशन ही प्रीचिंग मिशन है। प्रीचिंग मिशन मीन टीचिंग दिस साइंस। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रीचिंग्स आर देयर। कभी मंदिर नहीं होता तो जरूरी नहीं मंदिर हो, हम लोग जाके ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। So temple is not a compulsory, but if temple is there, more opportunity to preach. Many souls will come, isn't it? Got it? Yes. Anything else? मुरारी जैसे दोस्त ने कहा कि बहुत सारे मंदिर हैं, हर जगह पे हमको सिखाते नहीं है, टीच नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे चूज करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए? That हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ पे हमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, हाँ ना? Which one is good for us? we should be having this kind of heart. अरे ये मंदिर इतना ये करा है, let us go and do voluntarily many services so that this kind of temples may progress further and enhance their services to the society. So we should select them. It's up to individuals. समझे? बट मेरे लिए कोई एक जगह सही हो सकती है, मेरे दोस्त के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी अलग थिंकिंग होगी, मेरी अलग। हाँ, तो हम एक्चुअल में कैसे डिसाइड करें कि सही में कौन सा सही है? सही में कौन सा सही है? बाई इट्स एक्शन, एक्शन स्पीक लाउडर देन। सो कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है उसके एक्शन से पता लग जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग को देख के लोग बोलते हैं अरे आप लोग के पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है। हाँ, पैसा चाहिए ना, नहीं चाहिए क्या? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए पैसा। पैसा आता है हमारे साथ में, क्या होता है? करोड़ों रुपए आएगा, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। अरबों आएगा, अरबों खर्च कर देंगे। एक हाथ आता है, एक हाथ हम लोग होल्ड करके नहीं रखते कभी। पैसा चाहिए जितना दो, कर लाखों नहीं, हमको करोड़ों अरबों चाहिए। पूरी पृथ्वी का जितना पैसा आना सब आने से भी हम उसको खर्च कर देंगे। नहीं चाहिए ना पैसा, फैसिलिटीज भी चाहिए ताकि हम, मैंने बताया जैसे चोर को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे स्पीड वाला फास्ट जाना पड़ेगा। तो वी यूज मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, all digital things we use. This is called yukta vairagya. That is what Prabhupada has taught us. So acharya is most important. Anything else? जैसे गुरुजी आपने बोला था कि फिजिकली ट्रीटमेंट जो है वो तो हॉस्पिटल में बाहर में हो जाता है, इंटरनली जो ट्रीटमेंट होता है खुद को साफ करना अंदर से, वो कैसे करें आपने बताया? By meditation. That's why sound meditation is very very important. In this age, चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस संकीर्तना, क्योंकि हम लोग का जो माइंड है ना वो साउंड से ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इसीलिए जैसे सुना है ना कहावत, लोहा लोहे को काटता है, तो इस एज के लिए साउंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया है। तो स्पेशली पर्टिकुलर मंत्र दैट इज कॉल्ड हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो स्पेशली हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए।